ایک دور تھا جب قدرت کے راز انسانوں کی نظروں سے بالکل اوجھل نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک شاندار اور روشن سلطنت موجود تھی جس کا نام دارال نور تھا۔ دارال نور پہاڑوں کے دامن میں آباد ایک ایسی سرزمین تھی جہاں صبح کی پہلی روشنی بہت خوشگوار ہوتی تھی۔ اس سلطنت کی فضا میں سکون، امن اور انصاف کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دارال نور کے بادشاہ سلطان حارث بن جلال تھے، جو اپنی رعایا سے بے حد محبت رکھتے تھے اور جن کا نام دور دراز کے علاقوں میں بھی عزت اور عدل کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان کی عدالت میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا اور ہر فیصلہ سچائی اور انصاف کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ سلطان حارث کی زوجہ ملکہ صفیہ نور تھیں، جو دیکھنے میں ایک عام انسان لگتی تھیں مگر حقیقت میں وہ ایک نورانی مخلوق سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے وجود سے ایسی روشنی پھوٹتی تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی تھی، اور ان کی دعا میں ایسی تاثیر تھی جو مشکل کو آسان بنا دیتی تھی۔ ملکہ صفیہ نور نے اپنی نورانی دنیا، اپنی طویل عمر اور اپنی بے شمار طاقتیں صرف ایک انسان کی محبت کی خاطر قربان کر دی تھیں۔ وہ سلطان حارث سے سچی محبت کرتی تھیں اور اسی محبت نے انہیں انسانوں کی دنیا میں رہنے پر آمادہ کیا تھا۔ اللہ تعالی نے اس محبت کے صلے میں اس جوڑے کو 2 بیٹیوں سے نوازا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر پورا محل ایک عجیب و غریب روشنی سے بھر گیا، جیسے ہزاروں چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے ہوں۔ اس بچی کا نام شہزادی آیا نور رکھا گیا۔ شہزادی آیا نور اپنی ماں کے نورانی اوصاف کی وارث تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نور تھا جو سامنے والے کے دل تک اتر جاتا تھا، اور ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ پرندے بھی اسے سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں یہ قدرت تھی کہ وہ جس مرجھائے ہوئے پھول کو چھو لیتے وہ دوبارہ کھل اٹھتا تھا۔ 2 سال بعد اللہ نے سلطان اور ملکہ کو دوسری بیٹی عطا کی جس کا نام شہزادی سلمی رکھا گیا۔ شہزادی سلمی بھی بے حد خوبصورت تھیں، مگر ان کی فطرت زیادہ انسانی اور زمینی تھی۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت تھی، ان کی ہنسی میں شرارت تھی، اور ان کے دل میں اپنی بڑی بہن کے لیے بے پناہ محبت بسی ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی تھیں جیسے روشنی اور سایہ، جیسے پھول اور خوشبو، اور جیسے چاند اور اس کی چاندنی۔ محل کے ہر کونے میں ان دونوں کی ہنسی گونجتی تھی اور ان کی موجودگی سے فضا زندہ محسوس ہوتی تھی۔ ملکہ صفیہ نور اپنی دونوں بیٹیوں سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ وہ انہیں رات کے وقت ستاروں کے قصے سناتیں، انہیں پھولوں کی زبان سکھاتیں اور انہیں یہ بتاتیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت نیکی اور سچائی ہوتی ہے۔ جب شہزادی آیا نور 7 برس کی ہوئیں تو ملکہ صفیہ نور نے ایک دن انہیں تنہائی میں بلا کر ایک اہم راز بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آیا نور کے وجود میں نورانی مخلوق کی کچھ خاص نشانیاں موجود ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتے، مگر ان طاقتوں کو دنیا سے چھپا کر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہر آنکھ خیر کی نہیں ہوتی۔ کچھ ہی عرصے بعد ملکہ صفیہ نور شدید بیمار پڑ گئیں۔ یہ بیماری عام بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ اس حقیقت کا اعلان تھی کہ انسانوں کی دنیا میں ان کا مقرر وقت پورا ہو چکا تھا۔ محل کے تمام حکیم اور طبیب بلائے گئے مگر کوئی بھی انہیں شفا نہ دے سکا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر روشن تھا، ملکہ صفیہ نور نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر آ سکتی ہے۔ انہوں نے شہزادی آیا نور کے گلے میں ایک نورانی تعویذ ڈالتے ہوئے کہا کہ جب کبھی زندگی تم پر بھاری ہو جائے تو اس تعویذ کو اپنے دل پر رکھنا اور مجھے یاد کرنا، کیونکہ میرا نور ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی رات خاموشی سے ملکہ صفیہ نور نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ ان کے رخصت ہوتے ہی پورا محل ایک لمحے کے لیے نور سے بھر گیا اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ سلطان حارث ٹوٹ گئے اور شہزادیاں ماں کی جدائی میں خاموش ہو گئیں۔ یوں دارال نور کی خوشیوں بھری دنیا پر اداسی کا سایہ پڑ گیا اور تقدیر نے ایک ایسے امتحان کی تیاری شروع کر دی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہ تھا۔ ملکہ صفیہ نور کے وصال کے بعد دارال نور کی فضاؤں میں وہ روشنی باقی نہ رہی
जो कभी हर दिल को मुतमईन कर देती थी। महल के दरो दीवार खामोश थे और सुल्तान हारिस बिन जलाल के चेहरे पर ऐसी उदासी छाई रहती थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती थी। सुल्तान दिनों दिन अपने कमरे में बंद रहने लगे। वो घंटों मुल्का सफिया नूर की यादों में खोए रहते और राया के मामलात से भी गाफिल हो गए। सल्तनत का निज़ाम अगरचा चल रहा था, मगर इसमें वो रूह बाकी न रही थी जो पहले हुआ करती थी। शहजादी आया नूर और शहजादी सिल्मी भी माँ की जुदाई के बाद बदल सी गई थीं। आया नूर खामोश रहने लगी थी और अक्सर तन्हाई में बैठकर आसमान को देखा करते। सलमी हर वक्त अपनी बहन के करीब रहती और उनका हाथ मजबूती से थामे रखती, जैसे डर हो कि कहीं वो भी उसे छोड़ न जाए। वक्त गुजरता गया और दाराल नौर में उदासी मुस्तकिल मेहमान बन गई। एक दिन सल्तनत के बुजुर्ग वजीरों ने सुल्तान हारिस से अर्ज किया कि राया को अपने बादशाह की जरूरत है और शहजादियों को एक सहारे की। अगर सुल्तान यूं नहीं गम में डूबे रहे तो न सल्तनत संभल सकेगी और न ही बच्चों का मुस्तकबल महफूज रहेगा। सुल्तान हारिस ने इब्तिदा में इनकार किया, मगर जब उन्होंने अपनी बेटियों की उदास आंखों में मां की कमी देखी तो उनका दिल नर्म पड़ गया। आखिरकार उन्होंने दूसरी शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी। जल्द ही दूर दराज के इलाकों से रिश्ते आने लगे, मगर सुल्तान का दिल किसी पर न ठहरा। फिर एक दिन एक औरत दरबार में पेश की गई जिसका नाम ज़हरा दख्ती साया था। ज़हरा गैर मामूली हुस्न की मालिक थी। इसकी आंखें सब्ज ज़ुमरद की तरह चमकती थीं। इसके बाल स्याह रात की मानंद घने थे। में ऐसा फरेब था जो देखने वाले को सोचने से रोक देता था। सुल्तान हारिस उसके हसन और नरमी से मुतासिर हो गए और ज्यादा गौर किए बगैर निकाह का फैसला कर लिया। मगर ज़हरा दख्ती साया कोई आम औरत न थी। वो एक ताकतूर जादूगरनी थी जिसने अपनी जवानी और खूबसूरती सियाह जादू के जरिए कायम रखी हुई थी। इसे ये भी इल्म हो चुका था कि दाराल नौर की पहली मुल्का नूरानी मखलूक से ताल्लुक रखती थी और उसकी बड़ी बेटी में भी वही नूरानी ताकतें मौजूद हैं। ज़हरा को नूरानी मखलूक से शदीद नफरत थी, क्योंकि माजी में एक नूरानी औरत ने उसके जुल्म के खिलाफ खड़े होकर इस पर ऐसा अजाब नाजिल किया था जिसके बाद वो अपनी असल शक्ल छुपाने पर मजबूर हो गई थी। इसी नफरत ने उसे दाराल नूर तक पहुंचाया था। शादी के इब्तिदाई महीनों में ज़हरा ने खुद को एक नेक, समझदार और मोहब्बत करने वाली मुल्का के तौर पर पेश किया। वो सुल्तान हारिस से एहतराम और नरमी से पेश आती, दरबार के मामलात में दिलचस्पी लेती और शहजादियों से भी बज़ाहिर शफ़क़त का सलूक करती। मगर रात के सन्नाटे में वो अपने खफिया कमरे में जाती जहां इसका सारा जादुई सामान छिपा हुआ था। इसी कमरे में एक जादुई आईना मौजूद था जो सिर्फ सच बोलता था। एक रात ज़हरा ने इस आईने से सवाल किया कि इस सल्तनत में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। आईने ने बेजान आवाज में जवाब दिया कि तुम खूबसूरत हो, मगर शहजादी आया नूर का हुस्न तुमसे कहीं बढ़कर है, क्योंकि इसमें नूरानी सच्चाई शामिल है। ये सुनकर ज़हरा के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने इसी लम्हे फैसला कर लिया कि आया नूर को किसी न किसी तरह रास्ते से हटाना होगा, मगर ऐसा कि किसी को शक भी न हो। बुराहे रास्ते नुकसान पहुंचाना मुमकिन न था, इसलिए ज़हरा ने एक और रास्ता चुना। इसने शहजादी सलमी के दिल में आया नूर के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जहर भरना शुरू कर दिया। वो सलमी को कीमती लिबास, ज़ीवरात और झूठी मोहब्बत देती और धीरे धीरे कहती कि महल में सब आया नूर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो उसे ये एहसास दिलाने लगी कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं और वो हमेशा अपनी बहन के साए में रहेगी। शुरू में सलमी ने उन बातों पर यकीन न किया, मगर ज़हरा ने ऐसे हालात पैदा किए कि ये बातें सच लगने लगें। कभी तहफ़ों में फ़र्क डाला गया और कभी दरबार में तारीफ़ों का रख सिर्फ आया नूर की तरफ मोड़ा गया। वक्त के साथ साथ सलमी के मासूम दिल में शक और हसद ने जगह बना ली। वो अपनी बहन से दूर होने लगी और आया नूर ये सब देखकर भी वजह समझ न पाती। यूं दाराल नूर के महल में खामोशी के साथ एक ऐसी साजिश परवान चढ़ने लगी
जो जल्द ही एक बड़े सान्हे में बदलने वाली थी, और नूर के मुकाबले में साया आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ रहा था। वक्त गुजरता गया और दाराल नूर के महल में खामोशी के पर्दे और गहरे होते चले गए। शहजादी आया नूर दिन बदन निखरती जा रही थीं और उनके वजूद में छिपा नूर अब पहले से ज्यादा नुमायां होने लगा था। जहां वो जाती थीं वहां फजा हल्की और दिल मुतमईन हो जाता था, और जहां वो उदास होते वहां बादल आकर ठहर जाते थे। ज़हरा दख्ती साया ये सब खामोशी से देखती और अपने दिल में हसद की आग को बढ़ता हुआ महसूस करती। हर रात वो अपने खफिया कमरे में जाती, जादवी आईने के सामने खड़ी होती और वही सवाल दोहराती कि उस सल्तनत में सबसे ज्यादा हुसैन कौन है। आईना हर बार एक ही नाम लेता और ज़हरा के दिल पर अंगारे बरसाता। इधर शहजादी सलमी के दिल में भी एक अजीब सा खला पैदा हो चुका था। वो अपनी बहन से मोहब्बत तो करती थी, मगर ज़हरा के अल्फाज उनके दिल में कांटों की तरह चुभते रहते थे। वो अक्सर सोचते हैं कि अगर आया नूर न होते तो शायद सबकी तौजा उनकी तरफ होती। एक दिन ज़हरा ने महसूस किया कि अब वक्त आ चुका है कि वो अपना अगला कदम उठाए। इसने एक ऐसे जादू की तैयारी शुरू की जो सिर्फ अंधेरी रात में मुकम्मल हो सकता था, ऐसी रात में जब आसमान पर चांद न हो और सितारे भी छिप जाएं। इस मखसूस रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, ज़हरा अपने खफिया कमरे में दाखिल हुई। इसने सियाह कपड़ा जमीन पर बिछाया, चारों कोनों में सियाह शमع जलाएं और दरमियान में जादुई आईना रख दिया। फजा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी और दीवारों पर साए लुढ़कने लगे। इसी लम्हे शहजादी आया नूर के गले में पड़ा नूरानी ताबीज गर्म होने लगा। उनकी नींद टूट गई और दिल में एक बेनाम सा खौफ उतर आया। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो आसमान गैर मामूली तौर पर सियाह दिखाई दिया, जैसे रोशनी ने इस रात रुखसत ले ली हो। आया नूर को अपनी माँ की आवाज दिल में सुनाई दी, जो उन्हें खबरदार कर रही थी कि खतरा करीब है। उन्होंने फौरन शहजादी सलमी को जगाने की कोशिश की, मगर सलमी गहरी नींद में थी, ऐसी नींद जिस पर किसी जादू का साया था। दिल मजबूत करके आया नूर अपने कमरे से बाहर निकले। महल की राहदारियों में गैर फितरी खामोशी थी और हवा में जले हुए मंत्र की बू बसी हुई थी। उन्होंने अपनी नूरानी हिस्स को इस्तेमाल किया और फौरन समझ गईं कि ये सब ज़हरा के कमरे से आ रहा है। जब आया नूर ने दरवाजे की ओट से अंदर झांका तो उनकी सांसें रुक गईं। ज़हरा दख्ती साया अपनी असल शक्ल में मौजूद थी। इसका चेहरा झरियों से भरा हुआ था, बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे और आंखों में ऐसी नफरत थी जो देखने वाले के दिल को दहला दे। ज़हरा जादुई आईने के सामने मंत्र पढ़ रही थी और आईने में आया नूर का अक्स भर रहा था। मंत्र का मकसद वाज़ेह था, वो आया नूर को पत्थर में बदलना चाहती थी ताकि हमेशा के लिए उस नूर से नजात पा सके। अचानक आया नूर के कदमों से आवाज पैदा हो गई और ज़हरा की नजर उन पर जा पड़ी। ज़हरा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई और उसने चीख कर कहा कि अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं रही। आया नूर ने सच्चाई के साथ इस पर इल्जाम लगाया कि उसने सुल्तान को धोखा दिया है और वो एक जादूगरनी है। ज़हरा ने कहका लगाया और अपने माजी की नफरत और बदले की कहानी बयान की। इसी लम्हे शहजादी सलमी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में खौफ और उलझन थी और दिल में तूफान बरपा था। ज़हरा ने मौके देखकर सलमी के दिल में भरे हुए शक को उभारा और उन्हें अपनी बहन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। ज़हरा ने पूरी ताकत के साथ आखिरी मंत्र पढ़ा। काली और सुनहरी रोशनी आपस में टकराएं और महल लर्ज उठा। आया नूर ने महसूस किया कि उनके कदम भारी हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर में बदलने लगे। अपने आखिरी लम्हे में आया नूर ने बहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शिकवा न था, बल्कि बेपनाह मोहब्बत और माफ़ी थी। फिर वो मुकम्मल तौर पर सिंगमरमर की एक खूबसूरत औरत बन गई, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू जम गए थे। ज़हरा ने फतह का कहकहा लगाया और आईने से दोबारा सवाल किया। आईने ने इस बार उसे सबसे हुसीन करार दिया।
मगर इसी कमरे में सलमी की सिसकियां गूंजने लगे, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यूं दाराल नौर में नूर खामोश हो गया और साया वक्ती तौर पर गालिब आ गया। मगर तकदीर की किताब में कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। शहजादी आया नूर के पत्थर में बदल जाने के बाद दाराल नूर की फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। महल के तमाम लोग हैरान और उदास थे, मगर किसी को भी याद न रहा कि कभी आया नूर नाम की कोई शहजादी मौजूद थी। सुल्तान हारिस और ज़हरा दख्त साया के अलावा सिर्फ शहजादी सलमी जानती थीं कि क्या हुआ है। सलमी दिन ब दिन उदास और खुद से बेजार हो गई थी। हर लम्हे उन्हें अपनी बहन की याद सताती और दिल के अंदर पछतावा एक भारी बोझ की तरह बढ़ता जा रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि ज़हरा दख्ती साया के फरेब में आकर उन्होंने अपनी बहन के साथ जो जुल्म किया, इसकी कीमत कभी अदा नहीं की जा सकती। महल के दीगर लोग सलमी की उदासी को बीमारी समझकर दुआएं करते, मगर हकीकत सिर्फ सलमी के दिल के राज में छुपी थी। इसी दौरान दाराल नौर के कुछ फासले पर एक गरीब मगर बहादुर नौजवान रहता था। इसका नाम हमजा करीम था। हमजा 35 साल का था, मगर उसके दिल में 20 लोगों की हिम्मत और हार न मानने का हौसला था। वो एक माहिर दर्जी का बेटा था और बचपन से ही दिल साफ और नीयत खालिस रखने वाला था। हमजा के ख्वाब भी आम नहीं थे। हर रात उसे ख्वाब में एक हुसैन लड़की नजर आती जो उससे मदद मांगती। वो हमेशा कहती, मुझे बचाओ, मुझे पत्थर की कैद से आज़ाद करो। हमजा को ये ख्वाब इतने हकीकती लगते कि वो अक्सर रात को अचानक जाग जाता और अपने दिल में सोचता कि ये किसी खास तकदीर की निशानी है। सलमी के दिल में पछतावा बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो सोचने लगी कि शायद किसी न किसी तरह वो आया नूर को वापस ला सकती हैं। उन्हें याद आया कि मलका सफिया नूर ने कहा था कि दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत और हिफाजत हैं। इसी दौरान हमजा करीम भी ख्वाब में आने वाली लड़की के निशानों को पहचानने लगा। वो समझ गया कि ये लड़की किसी खास खानदान या सल्तनत से ताल्लुक़ रखती है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी बहादुर के हाथों की ज़रूरत है। हमजा ने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस लड़की को आज़ाद करके हक की रोशनी दोबारा कायम करेगा। यूं दाराल नूर में खामोशी, पछतावा और उदासी के दरमियान एक नई उम्मीद की किरण पैदा हुई, जो जल्द ही एक बड़े सफ़र और गैर मामूली महम की शुरुआत साबित होने वाली थी। सलमी ने महल की तन्हाई में दिल में ठान लिया कि वो अपनी बहन आया नूर को वापस लाएंगी। हर रात वो चुपके से आया नूर की मूर्त के पास जाती और उसे देखकर दिल में अज़्म को मजबूत करती। वो जान गई थी कि अगर वो न खड़ी हुई तो रोशनी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। इसी दौरान शहर में गरीब मगर बहादुर नौजवान हमजा करीम अपने मामूल के कामों में मसरूफ था, लेकिन ख्वाब में आने वाली हुसैन लड़की की तस्वीर और आवाज़ें इसके दिल में जस्तजू पैदा कर रही थीं। हमजा करीम अपने ख्वाब की रहनुमाई में महल के करीब पहुंच गया। वो जान गया था कि कोई खतरा मौजूद है, मगर उसका दिल मजबूत था और वो तैयार था कि किसी भी कीमत पर इस लड़की को आज़ाद करे। रात के अंधेरे में सलमी ने हमजा को महल में छिपते हुए पाया। वो पहले थोड़ी घबरा गई, मगर जल्द ही समझ गई कि ये नौजवान आया नूर की मदद के लिए आया है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खामोशी से मंसूबा बनाया कि किस तरह वो ज़हरा दख्त साया के जादुई ताकतों से आया नूर को आज़ाद करेंगे। सलमी और हमजा ने अपने हौसले को मजबूत किया और अज़्म कर लिया कि वो किसी भी खतरे को शिकस्त देंगे। वो जान गए थे कि यह मुहिम सिर्फ बहन को बचाने की नहीं, बल्कि दाराल नौर में रोशनी को वापस लाने की भी है। चांदनी रात ने दाराल नूर की फ़ज़ा को एक प्रासरार रोशनी में बदल दिया। सितारे गायब थे, लेकिन चांद की हल्की रोशनी सलमी और हमजा के लिए रहनुमाई का जरिया बनी। दोनों ने महल के सबसे छिपे हुए रास्ते का इंतखाब किया ताकि ज़हरा दख्त साया की निगाहों से बच सकें। सलमी ने आया नूर की पत्थर की मूर्त को एहतियात से उठाया और उसे तौलिए में लपेटकर हमजा के साथ चलने लगी। मूर्त से हल्की सी रोशनी खारिज हो रही थी। रास्ते में ज़हरा दख्ती साया ने देखा कि सलमी और हमजा करीब आ रहे हैं। इसने फौरन अपनी जादुई ताकत को जमा किया
और महल के दरवाजे के पास एक जादुई दीवार खड़ी कर दी। सलमी ने अपनी बहन का तावीज पकड़ा और दुआएं पढ़ना शुरू की। तावीज ने रोशनी खारिज की जो जादुई दीवार से टकराकर इसे आहिस्ता कमजोर करने लगी। कुछ देर बाद दीवार टूट गई और सलमी व हमजा अंदर दाखिल हुए। हमजा ने तलवार के वार से जादूगरनी का सर अलग कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता आया नूर के हाथों में हल्की हरकत और सांसें महसूस होने लगे और वो ठीक हो गए। सलमी, हमजा और आया नूर ने एक दूसरे को देखकर खामोशी से मुस्कुराए। यूं चांदनी रात में उम्मीद, बहादुरी और मोहब्बत ने पहली बार अंधेरे पर फतह हासिल की और दाराल नूर में रोशनी की किरण फिर से जाग उठी। पूरी कहानी सुनने के लिए अब सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी अब तक पहुंचती रहे।